बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, बुक इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, and we are going to start our unit number 1, and our topic is today, our poem is Miss Polly. See students, page number 18, unit number 1, and our topic is Miss Polly. Okay, what is it? Miss Polly. Miss Polly is about a girl. एक लड़की के बारे में है बच्चों। इसमें हम ये पढ़ने लगे हैं कि एक लड़की होती है पॉली, जिसके पास एक डॉल होती है और वो डॉल हो जाती है बीमार, और फिर वो बुलाती है डॉक्टर को और उसको ये देखभाल करवाती है, उसको मेडिसिन देती है ताकि, और फिर डॉक्टर आता है और उसको चेक करता है। ठीक है बच्चों, तो हम ये पोएम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो आवर टॉपिक इज मिस Polly. Look at the pictures of toys. Okay? अब हम ये सब टॉयज की देखें स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है। अगर आपके पास है तो इनमें से कोई ना कोई टॉय आपके पास होगा। गर्ल्स के पास डॉल होती है, बॉयज के पास कार या ये आर्मी होता है, और दिस इज अ बेयर विद अ ड्रम, सो विच मेक साउंड्स डम 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 लाइक दिस। सो these are the pictures: doll, a bear with a drum, army man and a car. अब देखिए बच्चों, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? Which is your favorite toy? Tick correct the picture. अब इसमें से आपका कौन सा फेवरेट टॉय है उस पे आपने टिक करना है। So if I will tick, so I will tick on the doll. Okay? अब आपका इसमें से जोन सा भी फेवरेट टॉय है, आपका पसंदीदा खिलौना है, आप उस पर टिक कीजिए। अगर गाड़ी है तो उस पर कर दीजिए, आर्मी मैन है तो उस पर कर दें, या ये है तो इस पर कर दें। मैंने इस पे किया है। ठीक है, तो चलें बच्चों, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं मिस पॉली की। सो व्हाट इज इट? इट्स अबाउट अ मिस पॉली हु हैड अ डॉली। Yes students, let's start. Miss Polly had a dolly who was sick. Yes, so Miss Polly के पास क्या था? एक डोली थी। Miss Polly had a dolly who was sick. Okay? ये आपने शायद कभी YouTube में भी सुना होगा। ये एक बहुत ही अच्छी प्यारी और फेमस पोएम है मिस पॉली के बारे में, कि उनके पास एक डॉली होती है जो बीमार हो गई है। So she called for the doctor to come quick. तो उन्होंने क्या किया? ये देखे बच्चों, आप पिक्चर भी देख सकते हैं ना। See students, look at the picture. This is Miss Polly and she had a dolly who is sick. That's why she is sad. देखिए वो कितनी उदास है कि उसकी डॉल जो है वो बीमार हो गई है, तो इसलिए उसने डॉक्टर को कॉल किया। और ये देखे बच्चों, डॉक्टर आया है। सो डॉक्टर किसके साथ आया? The doctor came with his bag and his hat. See, bag and a hat. Doctor is coming. The doctor came with his bag and a hat, and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. Means ये जो दरवाजे पे नॉक करते हैं उसकी आवाज, जिस तरह देखें स्टूडेंट्स, like this. ठीक है? So now again let's start reading. Miss Polly had a dolly who was sick. So she called for the doctor to come quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with the rat-a-tat-tat. Come on student, you can do this. Rat-a-tat-tat. Okay? Rat-a-tat-tat. To knock on the door मतलब दरवाजे पे दस्तक देना, क्योंकि वो उसके घर पे आया तो उसने पहले दरवाजे पे नॉक की है। Okay? So again students, let's start reading. Miss Polly had a dolly who was sick. So she called for the doctor to come quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with the rat-a-tat-tat. Okay? चलें एक बार हम आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप दोबारा से जरा सॉन्ग की तरह इसको पढ़िएगा मेरे साथ। So Miss Polly had a dolly
Miss Polly had a dolly who was sick. So she called for the doctor to come quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. Okay, students? Now we will start again with like a song, like a poem, we will read it. Miss Polly had a dolly who was sick. So she called for the doctor to come quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with the rat-a-tat-tat. Okay, students? Come on, this we have finished our poem here. Now we will go to the exercise. Next page, page number 19. Come on, students. Let's start here. What is your first exercise? It's about meanings. Okay? See, students, word meanings. Now come on. Dolly means a doll. एक गुड़िया का नाम है डोली. Sick मतलब बीमार होना. Unwell. Okay? Ill. बीमार होना, ठीक ना होना. Quick यानी जल्दी से. At once. Okay? Dolly, a doll. Sick, unwell, ill. Quick, at once. Knocked, tapped. वही means दस्तखत देना ऐसे. Okay? To knock on the door. Rat-a-tat-tat, ये जो आवाज आती है नॉक करने से, चाहे आप ऐसे नॉक करें या आप ऐसे करें या आप ऐसे करें, ये जो साउंड आती है ना उसको उन्होंने एक नाम दिया है, rat-a-tat-tat. ओके, सो साउंड मेड बाय नॉकिंग ऑन द डोर. जो आवाज आती है दरवाजे पे दस्तक देने से, उसको ये कहा गया है. ओके स्टूडेंट्स, knocked, tapped, rat-a-tat-tat, sound made by knocking on the door. Okay, now here comes opposites. अब आगे हैं हमारे opposites. Opposites यानी उलट. Okay, जैसे sick जिसका मैंने आपको बताया था बीमार होना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उलट क्या होगा. अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप क्या कहेंगे, वो बीमार है लेकिन मैं ठीक हूं, है ना, तो उसका आपने ऑपोजिट बता दिया. तो सिक भी ऐसे ही है, ये बीमार होना सिक, हेल्दी होना मतलब सेहतमंद, ठीक होना. ठीक है, सिक, हेल्दी या वेल. ओके, क्विक यानी जल्दी, उसका ऑपोजिट क्या होगा, आहिस्ता, जल्दी आहिस्ता. तो क्विक, स्लो. ओके, सिक, हेल्दी, वेल, क्विक, स्लो. Okay, so now students we will move to our next exercise in which we are going to do the rhyming words. तो बच्चों मैं आपको बता दूं rhyming words क्या होता है. वो अल्फाज जिनकी आवाजें सेम होती हैं उनको हम rhyming words कहते हैं. उनके स्पेलिंग सेम नहीं होते, उनकी आवाजें सेम होती हैं. ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने कितने अल्फाज पढ़े हैं, जैसे पोली हो गया, उसके साथ जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है, डोली. ठीक है, जिस तरह अगर कार है तो कार का क्या होगा, फार. स्पेलिंग डिफरेंट है बट द साउंड इज सेम. दैट इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड हियर. पिक आउट राइमिंग वर्ड्स from the poem for each of the following. Okay, now come on, take your pencil students and write with me. Polly. So what is the word rhyming for Polly? Again let's listen. Miss Polly had a dolly. So what is rhyming word, dolly. So let's write here, dolly. Okay, Miss Polly had a dolly. Okay, now next, tag. What is the rhyming word of with tag on the poem? It's bag. The doctor came with his bag and his hat. So bag, tag, bag. Come on students, write bag. Next, sat. Sat,
hat, with his bag and his hat. So, hat. H-A-T, hat. Okay, next, floor. Floor, what is the rhyming word, students? Come on, think. He knocked on the door with the rat-a-tat-tat. So, what is rhyming with floor? Door. He knocked on the door. Door. Okay, Polly, dolly. Tag, bag. Sat, hat. Floor, door. Okay, student. Now next, sick. Yes, what is the rhyming word of sick? Quick. See, students, Miss Polly had a dolly who was sick. So she called for the doctor to come quick. So sick, quick. Quick. Q-U-I-C-K. Quick. Now next, rat. Now with rat, what we will write? Come on, think, students, what you will write with rat? It's sad. Rat, sad, or you can say, no, but we have to look from the book. So that is tat. Rat-a-tat-tat. Rat, tat. Okay, tat. Now next, same. Same, came. He came with the bag and hat. Came. Sad. Sad. What is with sad? Had. Miss Polly had. Yes, students. See? Now we have finished it. Polly, dolly. Tag, bag. Sat, hat. Floor, door. Sick, quick. Rat, tat. Same, came, sad, had. Okay? Now come on, student, look. Next one. Now see, students, here they have given you some words. Look at the words. Had, who, was, she, come, came, his. Okay, these are the words. And now they have given you here column. 2 columns they have given you. The first column they are saying words with 3 letters, and the second column is words with 4 letters. So you can see the students and you can count them, which are the letters with 3 and which are the words with 4 letters. See, had, 1, 2, 3. Who, 1, 2, 3. Was, 1, 2, 3. She, 1, 2, 3. Come, 1, 2, 3, 4. Came, 1, 2, 3, 4. His, 1, 2, 3. See, students? So, now we have to separate these 3 words with 3 letters and words with 4 letters. Okay? So, let's start writing. What is first one? Had. How many letters? 1, 2, 3. So, this will go in this column. 3 letters. Okay? Had. Next, who. How many letters? 1, 2, 3. Same. We will write here. Who. Next, was. How many letters? 1, 2, 3. 3. Then, she. How many letters? 1, 2, 3. She. Now, come. How many letters? 1, 2, 3, 4. 4 letters. So, 4 letters is here. We will write here. Come. Came. 1, 2, 3, 4. Came.
Okay, last one, his. How many letters? 1 2 3, so it will go to this column, his. Okay students, words with 3 letters, had, who, was, she, his, and words with 4 letters, come, came. Okay, now move to next page, page number 20. Our next exercise. See students. जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं पेज नंबर 20 पे. वी आर ऑन आवर पेज नंबर 20. नाउ स्टूडेंट्स सी, यू कैन सी द पिक्चर, you can see all the pictures. Yes, so here you have to tell which is animal, which is person, and which is place, and which is thing. यानी क्या ये जानवर है, कोई शख्स है, जगह का नाम है, या किसी चीज का नाम है. ओके बच्चों, अब देखें ये जो चीज होती है, मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, आई विल टेल यू दैट every person, animal, place and thing has a name. हर शख्स या जानवर या जगह या चीज का नाम जरूर होता है. कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका कोई नाम ना हो. तो वो यही आपको बता रहे हैं कि every person, animal, place and thing has a name. These names are called naming words or nouns. See students, ऐसे नामों को या तो नाउन कहा जाता है, नेमिंग वर्ड्स यानी उनको नाम दिया जाता है, जो उनके नाम के अल्फाज होते हैं वो. ओके, एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग हैज अ नेम. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स. नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स एंड सेम थिंग यू हैव टू राइट हियर. लाइक यू कैन सी द फर्स्ट वन they have done for us. उन्होंने हमारे लिए करके दिखाया as an example. Rabbit. What is a rabbit? Animal. जानवर है. Rabbit is a animal. So we will write here animal. Okay? See, you have to write for the person, you will write person. For the place, you will write place. यानी जगह के लिए आप place लिखेंगे. फिर जानवर के लिए आप एनिमल लिखेंगे और कुछ जो चीज है उसके लिए आप थिंग लिखेंगे. ओके, सो अब देखिए बच्चों, फर्स्ट वन इज रैबिट. रैबिट इज व्हाट? रैबिट क्या है? जानवर. सो रैबिट इज अ एनिमल. ये उन्होंने आपके लिए कर दिया. नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट वन. अब हम खुद करेंगे. सो स्टूडेंट, टेक योर पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी. कैमल. सो व्हाट इज अ कैमल? कैमल क्या है? Animal, जानवर. So we will write here animal. Animal. Okay? क्योंकि एक जानवर है, ना वो शख्स है, ना जगह है, ना चीज है, वो एक जानवर है. Okay? So number 3, baby. See, baby, small baby. Baby क्या होता है बच्चों? Baby is a person. Baby एक शख्स होता है. ठीक है? It's not an animal or place or thing. It's a person. एक इंसान है, एक शख्स है. So baby, person. We will write here person. P-E-R-S-O-N. Person. Okay students? Baby, person. Now number 4, child. Same, बच्चा. Child. What is it? Child? Person. ये भी पर्सन है. P-E-R-S-O-N. पर्सन. ओके, नाउ सी, वेल यानी कुआं. कुआं क्या है? कुआं भी कोई शख्स या जानवर या जगह नहीं है, ये एक चीज है. इट्स अ थिंग. वेल इज अ थिंग. कुआं एक थिंग है. सो लेट्स राइट thing. T-H-I-N-G. Thing. Okay? Well, thing. Now see student number 6, church. Church, अब देखिए, church क्या होता है students? जिस तरह मुसलमानों के लिए मस्जिद होती है, इस तरह ही जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके लिए चर्च होता है. ठीक है, जिधर जाके वो
अपनी इबादत करते हैं या दुआ मांगते हैं, जिस तरह मुसलमान मस्जिद में जाके दुआ मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह हर रिलीजन का अपना एक जगह होती है जिधर जाके वो अपनी इबादत भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं और वहां पे बैठते भी हैं। तो ये है चर्च। चर्च इज, व्हाट इज चर्च? चर्च शख्स है, जगह है, जानवर है या कोई चीज है? जगह है। चर्च एक जगह है, प्लेस। जगह यानी प्लेस। सो वी विल राइट प्लेस, PLACE, प्लेस। ओके, चर्च, प्लेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, शर्ट। शर्ट क्या है? व्हाट इज अ शर्ट? ऑफ कोर्स शर्ट इज अ थिंग, एक चीज है, सिर्फ एक चीज है। सो THING, थिंग। ओके, ये जितने भी कपड़े होते हैं वो सब थिंग में आते हैं। इवन आपकी पेंसिल, रबर या ये टेबल, चेयर्स, कैमरा हो गया, कप हो गया, चार्ट हो गया, कलर्स हो गए, ये सब थिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कोट। देखिए ये क्या है? ये भी थिंग है, THING, थिंग। नाउ कम स्टूडेंट्स, ब्रेड। अब ब्रेड क्या है? रोटी क्या है? चीज है। नो पर्सन, नो प्लेस, नो एनिमल, इट्स अ थिंग। THING, थिंग। ओके, नेक्स्ट, बाउल। ये क्या है? इट्स ऑल्सो अ थिंग। जो बर्तन होते हैं वो भी थिंग में आते हैं। ओके, so students again have a look at this from the beginning. See, rabbit, animal, camel, animal, baby, person, child, person, well, thing, church, place, shirt, thing, coat, thing, bread, thing, bowl, thing. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई ये जगह, जानवर या शख्स या चीज के बारे में जो नाम होते हैं उनको हम एक तो नाउन कहते हैं और दूसरा इस तरह आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21. Yes students, what we are going to do here, page number 21, it is about, yes, so students, इधर आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं and they have given you help box also, मीन्स उन्होंने आपकी मदद की हुई है ऑलरेडी नाम देके। ऊपर ये देखिए हेल्प बॉक्स, यहाँ पे सब नाम लिखे हुए हैं। तो आपने इन्हीं को देख के फिर पहले आपने पिक्चर्स देखनी है और फिर यहाँ से आपने देखना है किसका क्या नाम है, क्या चीज का क्या नाम है। ओके, सो फर्स्ट जिस तरह पहले उन्होंने हमारे लिए कर दिया, व्हाट इज द पिक्चर? बेयर। सो वेयर दिस वर्ड्स बेयर, सो दे रोट हियर बेयर, यहाँ पे उन्होंने बेयर लिख दिया। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज इट? ये एक लड़का है, व्हाट इज इट? लड़का यानी बॉय। सो वेयर इज द बॉय? सी स्टूडेंट्स, वेयर इज द बॉय? दिस। ओके, वी विल राइट हियर बॉय, B-O-Y, boy. Okay, now number 3, who is this man? देखिए स्टूडेंट्स, ये आदमी कौन है? पिक्चर को देखिए, ये एक आदमी है जिसके हाथ में खत है, जिसको हम डाकिया कहते हैं, यानी पोस्टमैन, जो आपके खत लेकर आता है, जो बाहर ममालिक से आए हों या एक ही मुल्क में दूसरे शहर से आए हुए खत हों, वो जो शख्स लेकर आता है उसको हम पोस्टमैन कहते हैं, यानी कि डाकिया। तो किधर है पोस्टमैन? दिस वन, पोस्टमैन। सो वी विल राइट हियर POSTMAN, पोस्टमैन।
Okay, so number 4, look at the picture students. What is it? ये कश्ती है, बड़ी सी जो कश्ती है वो है। तो जो बड़ी सी जो कश्ती होती है उसको हम बोट नहीं कहते, वैसे तो कश्ती को बोट कहा जाता है, लेकिन ये जो बड़ी वाली होती है उसको हम शिप कहते हैं। सी स्टूडेंट्स, शिप। ओके, सो SHIP, शिप। सो नंबर 5, ये क्या है बच्चों? लुक एट इट, इट्स अ बस। यस, बस यहां पे कहां है? बस। सो विल राइट हियर बस, BUS, बस। नंबर 6, सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? ये एक उल्लू है। इट्स अ owl, it's an owl. So where is the owl? This one, OWL, owl. Okay, now next, see students, what is the picture? ये देखें, अंदर जानवर और बाहर सब देख रहे हैं। सो जानवर आप कहाँ जाके देखते हैं? जू में। यस, तो जू किधर है स्टूडेंट्स? दिस वन। सो विल राइट हियर जू, ZOO, जू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देखें सब बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ सब बच्चे जाके खेलते हैं? झूले लेते हैं या फुटबॉल खेलते हैं? इट्स अ पार्क, गार्डन यानी के बाग में, पार्क। सो वेयर इज इट? दिस वन, पार्क, PARK, पार्क। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कौन है? हु इज ही? बादशाह, किंग। सो वेयर इज द किंग? दिस वन, KING, किंग। अब ये देखें स्टूडेंट, लास्ट वन, ये क्या दिखा रहे हैं? एक शहर है और बीच में क्या है उसके? ये गली बनी हुई है, रोड बनी हुई है। सो इसको हम स्ट्रीट कहते हैं। सो स्ट्रीट, दिस वन, STREET, स्ट्रीट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये देख लिया आपने? बेयर, बॉय, पोस्टमैन, शिप, बस, आउल, जू, पार्क, किंग, स्ट्रीट। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। ये अब आपने, ये है जी स्टूडेंट्स, आपने सुनना है यहाँ पे और इसका जवाब देना है। चलें, हम लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। The teacher will ask you a few questions. You will answer orally. Orally यानी आपने जुबानी आंसर देना है। Then complete this sentences given below. Student, अमूमन तो वैसे ये क्लास में करवाया जाता है, but nowadays there are no classes, so we will start reading and writing here only. So student, यहाँ पे वो आपसे सबसे पहले आपके जो आपका पसंदीदा खिलौना है उसके बारे में पूछ रहे हैं। Okay students? So my favorite toy is, what is your favorite toy? It can be anything, या कार है, या डोल है, या आर्मी मैन है, या फिर कैमल है, या फिर ट्रेन है, या कोई भी जिस तरह क्या कहते हैं उसे, डॉक्टर सेट है, anything you can say. So I will write here, my favorite toy is car. लेकिन आपको जो भी पसंद हो स्टूडेंट्स, आप वो लिख सकते हैं। I like it, मुझे ये पसंद है, because, क्योंकि I can dash with it, मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? खेल सकता हूँ। Play, PLAY, I like it because I can play with it. Okay? Next, its color is, अब उसका कलर क्या है? I will write any color, it can be yellow, red, purple, pink, blue, green, anything. So I will write its color is blue. Okay? Next, I keep this toy near. अब ये आप टॉय कहाँ रखती हैं? Near, you can say near
माई बेड, या मैं अपने बेड के पास रखता हूँ, या मैं अपने बुक शेल्फ पे रखता हूँ, या मैं अपने कबर्ड के अंदर रखता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं. सो आई विल राइट इट, आई कीप दिस टॉय नियर माई बेड, यानी अपने बिस्तर के पास ही रखता हूँ. दिस इज माई फेवरेट टॉय, सो आई कीप इट नियर माई बेड. ओके, so my favorite toy is car. I like it because I can play with it. Its color is blue. I keep this toy near my bed. Now next, here you have to ask your partner. Partner यानी अपने दोस्त से पूछें, अपने यहाँ घर में आपके साथ जो भी है उनसे आप पूछ लें. So they will tell you which is your favorite toy. ये आपने उनसे पूछना है और फिर यहाँ पे लिखना है. ठीक है? So, what is it? Which is your favorite toy? You can write here. Doll. Why do you like it? Because I can play with it. मैं उसके साथ खेल सकता हूँ, इसलिए मुझे पसंद है. Okay? Where do you keep it? In cupboard, अलमारी में. Okay, in cupboard. What is its color? उसका कलर क्या है डॉल का? You can say it's red. Okay, here you have finished this one also. Which is your favorite toy? Doll. Why do you like it? Because I can play with it. Where do you keep it? In cupboard. What is its color? Red. Okay. Now student, we will move to our last page. Page number 22. Here you will start. You will see what you have to do here. Here they have given you fill in the blanks, students. यहाँ पे आपको fill in the blanks दी गई हैं जो आपने कंप्लीट करनी है. एंड इट इज ऑल अबाउट मी, यानी सब आपके बारे में है. ओके स्टूडेंट, दिस यू हैव टू डू एट होम. यस स्टूडेंट्स, दिस वन इज ऑल अबाउट यू. आपने मतलब सब अपने बारे में लिखना है. देखें, आपका नाम, आपकी एज, आपकी बर्थडे, आपके फादर का नाम यानी आपके वालिद का, अब्बू का नाम, आपकी मम्मा का नाम, अम्मी का नाम, फिर आप किधर पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम, फिर एड्रेस आपका कौन सा है उसका नाम, उस जगह का नाम, और फिर फोन नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट, बट आपने अपने बारे में लिखना है. आई एम हियर राइटिंग एनीथिंग जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए मैं लिख रही हूँ. लेकिन आपने अपना नाम, अपनी एज और अपने पेरेंट्स का नाम वगैरह लिखना है. और आप अपने मम्मा पापा से पूछिएगा आपकी बर्थडे कब है, तो वो आपको बताएंगे, फिर आप वही लिखिएगा. ओके बच्चों. सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज माय नेम. आयशा. ओके, ये मैंने नाम लिखा है. अब आपका जो भी नाम है आपने वो लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, माय एज 3. Okay. My birthday is on. अब आपकी बर्थडे कब है वो आपने यहां पे लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, 31 जुलाई. ठीक है, यानी आपने महीने की तारीख लिखनी है और महीना भी मेंशन करना है. और यहाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखें, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं. जुलाई 31, या मार्च 14, फरवरी 3 या जनवरी 6, जो भी आपकी डेट है आप अपनी मम्मा पापा से पूछें. फिर आपने या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें. पहले महीना लिख लें फिर डेट लिखें, या पहले डेट लिख के फिर महीना लिख दें, ये आपकी मर्जी है. फिर माय फादर्स नेम, अब आपके फादर का क्या नाम है आप वही लिखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, माय फादर नेम इज बिलाल, तो मैं बिलाल लिखूंगी. एंड ऑलवेज राइट द नेम विद कैपिटल लेटर. ओके, बिलाल.
नेक्स्ट, माई मदर्स नेम. व्हाट इज योर मदर्स नेम? अपनी मम्मा का नाम लिखिएगा. मैं अपनी मम्मा का नाम लिख रही हूं, सफिया. ओके. नेक्स्ट, आई स्टडी इन. अब आप कहां पढ़ते हैं? आई स्टडी इन, इधर आपने अपना स्कूल लिखना है. ओके. अगर आपका स्कूल का नाम है एजुकेटर तो आप लिखेंगे आई स्टडी इन एजुकेटर. एजुकेटर. ओके. नाउ माई एड्रेसेस. अब आपका जहां भी घर है वो आप लिखिएगा. मैं लिख रही हूं यहां पे, चलें, मोहल्ला इस्लामाबाद. मोहल्ला इस्लामाबाद. ओके. नेक्स्ट, माई टेलीफोन नंबर. अब टेलीफोन नंबर जो भी है आपका 0300 देन वट एवर द नंबर इज. ओके. या 0332 या 0302 जो भी नंबर है आपने वो लिखना है यहाँ पे. ठीक है बच्चों. सो हियर वी हैव फिनिश दिस इंफॉर्मेशन अबाउट यू. ओके. आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, स्कूल के बारे में, आपकी जगह और आपके फोन नंबर के बारे में, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जिस दिन आप पैदा हुए हैं. ओके. नाउ द लास्ट वन. अब हम लास्ट पे आ गए हैं स्टूडेंट्स. सी, लुक एट दिस पिक्चर्स केयरफुली. What we have to do here? We have to match. See students, we have to match the pictures. First you can see the pictures here. See students, look at the pictures here. What you can see? It's a doll, doctor. This is a boy sick and this is a boy who is injured. यानी इसको चोट लगी है. अब आपने इन पिक्चर्स को इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है. ये देखिए, ये किसके साथ मैच होगा? फिर ये डॉल किसकी थी? मिस पॉली की थी. डॉल को पॉली के साथ मैच करेंगे. फिर ये देखें, ये बैंडेज रखी हुई है, यानी कि जिसको चोट लगी है उसको बैंडेज लगाते हैं, फिर हम उसके साथ मैच करेंगे. और ये देखिए नर्स, नर्स आई है, ये इसके हाथ में थर्मामीटर है जिससे हम बुखार चेक करते हैं, और जो बीमार है, जो बेड पे लेटा हुआ है, उसके साथ हम मैच करेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डॉल. अब डॉल किसकी है? मिस पॉली की. सो वी विल मैच डॉल विद मिस पॉली. सो इट कम्स here like this. Okay. डॉल को हमने मिस पॉली के साथ कनेक्ट कर दिया, मैच कर दिया. नेक्स्ट इज डॉक्टर. अब डॉक्टर यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सी चीज है डॉक्टर वाली? ये जो देखिए उसने यहाँ भी पहना हुआ है और इधर भी है. सो वी विल मैच विद दिस डॉक्टर विद दिस. ओके, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट, ये कौन है? ये एक लड़का है. इट्स अ बॉय हु इज सिक, जो बीमार है. अब इसका बुखार चेक करना है, और बुखार चेक करने वाला यहाँ पे कौन नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, ये नर्स है, उसने थर्मामीटर पकड़ा हुआ है उसका बुखार चेक करने के लिए. सो वी विल मैच विद नर्स, द सिक मैन with the nurse. Okay, yes. अब लास्ट वाला हमारा ये देखिए बच्चों, उसको चोट लग गई है. अब उसकी एक तो चोट को साफ करना है और ऊपर बैंडेज लगानी है. तो ये देखिए बच्चों, ये डेटॉल भी रखा हुआ है जो उसके चोट को साफ करेंगे, और फिर ये बैंडेज रखा हुआ है जो उसकी चोट के ऊपर हम लगा देंगे. तो ये इसके साथ मैच होगा, लाइक दिस. See. Okay students, so we matched the doll with the girl, Miss Polly, doctor with this, boy with the nurse, and this one with the bandage. So student, here is the end of our unit about Miss Polly who had a dolly. जो बीमार थी उसने डॉक्टर को बुलाया और वो उस डॉक्टर आया with his rat and with his hat and his bag, और उसने मिस पॉली की डॉली को चेक किया. ओके स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम.
टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए एंड ऑलवेज प्रे दैट योर स्कूल स्टार्ट सून. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.